بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، اور یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا حصہ دوم ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو، زمانہ جاہلیت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا شمار مکے کے انتہائی صاحب ثروت افراد میں ہوتا تھا۔ مال و دولت کے افراد کے ساتھ ہی اللہ عز و جل نے دل بھی غنی دیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسرا میں امداد کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت 10,000 دینار لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے قدموں میں ڈال دیے۔ اس کے بعد مزید 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1,000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ علاوہ سے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، اور وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا جو نہایت گرا قیمت پر پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت لازم ہو گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نیز جنگ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 650 اونٹ، 50 گھوڑے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے، غریب غربا کی مالی امداد کرتے۔ اسی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ دوستو، کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرے سے روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کے طور پر مکے سے روانہ کیا، کیونکہ اہل مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تسلیم نہ کی، اور جب وہ واپس آنے لگے تو انہیں روک لیا، جس پر ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو عثمان کا قصاص لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر ایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے اور آواز دی، بیعوا علی الموت، سر دھڑکی بازی لگانے پر بیعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنتے ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت سے متعلق فرمایا، بے شک اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ دوستو، اسی سے متعلق ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے حدیبہ میں درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر اس کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ دوستو، اس میں یہ لطیف اشارہ بھی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں دیوانہ وار بیعت کی اطلاع قریش مکہ تک پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو کر معاہدے پر مجبور ہو گئے۔
दोस्तों हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के तीसरे रोज़ 4 मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवील मुशावरत के बाद मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले असर की नमाज पढ़ाई। उस वक़्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 70 साल थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा बनने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्तरी यानी मोहर उनको मिली। एक मर्तबा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कुएं बेर अरेज पर तशरीफ़ ले गए जिसमें वो अंगूठी गिर गई और लाख कोशिश के बावजूद ना मिल सकी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसका बड़ा मलाल था। दोस्तों हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों की खबर दी और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि एक फितने में ये भी शहीद होंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई 6 साल नहायत पुरअमन और पुरसुकून थे, लेकिन फिर साजिशों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया जिनमें यहूद व नसारा की पुश्त पनाही में मुनाफिकीन और अब्दुल्लाह बिन सबा पेश थे। फिलाखिर 35 हिजरी शवाल में 1000 के करीब कूफा और बसरा के बागी और इस्लाम दुश्मन भेस बदल कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। इन दिनों सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी तादाद हज के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुकी थी, जिससे बागियों ने फ़ायदा उठाया। ये मुहासरा 40 रोज़ तक जारी रहा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बागियों को समझाने और मुहासरा ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और बागियों से जंग की इजाज़त चाही। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए किसी का खून बहाया जाए, और वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब शहर मदीने में। दोस्तों सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नूरे नज़र हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के पहरे पर मामूर कर दिया। इसी तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपने साहबजादों को पहरे पर मुकर्रर किया। मुहासरे के आखिरी दिनों में बहुत सख्ती कर दी गई। अहले मदीना अपने घरों में महसूर हो चुके थे। जो भी मुदाखलत करता बागी उसे शहीद कर देते। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का पानी तक बंद कर दिया गया। 18 ज़िलहज 35 हिजरी बरोज़े जुमा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़े से थे। इसी हालत में गशी तारी हुई तो देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मौजूद हैं और फरमा रहे हैं कि उस्मान आज का रोज़ा हमारे साथ इफ्तार करना। आपकी आँख खुली तो जोजा से फरमाया आज हमारी शहादत का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुंतज़िर हैं। दोस्तों 20 ग़ुलाम आपने आज़ाद किए, नया जामा ज़ेब-तन किया और कुरान पाक की तिलावत करने बैठ गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बलवाइयों ने मरकज़ी दरवाजे को आग लगा दी। पहरेदार आग बुझाने में मसरूफ़ थे कि इसी असना में मोहम्मद बिन अबू बकर अपने चंद साथियों के साथ पिछली जानिब से एक अंसारी उमर बिन हज़म के मकान की खिड़की से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर दाखिल हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भतीजे अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो तुम्हारी इस हरकत को हरगिज़ पसंद ना करते। ये सुनकर मोहम्मद बिन अबू बकर पीछे हट गया, लेकिन उसके साथी बेकाबू हो गए। कनाना बिन बशीर ने लोहे की भारी सलाख आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर मारी, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा।
सौदान बिन हमरान ने तलवार का वार किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा ने उसे अपने हाथ पर रोका, जिससे उनकी 3 उंगलियां कटकर अलग हो गई। इतने में उमर बिन अल-हमक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने मुबारक पर चढ़ बैठा और पे दर पे नेज़े की 9 वार किए। इस पर भी बस ना चला तो उसने तलवार का वार करके आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। दुनिया की असीम इस्लामी सल्तनत के सरबराह, दामादे रसूल, शर्मो हया के बेकर के जिस्म अथर से जारी होने वाले खून से कुरान पाक के औराक तर हो चुके थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को लूट लिया गया। जहन्नुम के सौदागर घर से बाहर नंगी तलवारें लिए फतह का जश्न मना रहे थे। ऐसे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो कपड़े आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ेबतन किए हुए थे, उसी में नमाज जनाजा के बाद जन्नतुल बक़ी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत इस्लामी तारीख़ का एक अंदोहनाक और तारीख़ बाब है, जिसके बाद मुसलमानों में इख्तलाफ व इंतशार का आगाज़ हुआ और उम्मत फिर कभी मुत्तहिद ना हो सकी। शहादत के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 82 साल थी। बास कुतुब में 90 साल दर्ज है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 दिन कम 12 साल खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए। यजीद बिन हबीब से रिवायत है कि जिन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया था, उनमें से अक्सर दीवाने होकर जहन्नुम रसीद हुए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।